we salute to our great mathematician. So now I would like to ask a few words by सोनी मौर्य। यस सर। सोनी मौर्य आपको इसके बारे में कुछ बताएंगी, रामानुजन के बारे में आपको एक्सप्लेन करेंगी। सोनी मौर्य। थैंक यू सर। गणित हमें यह उम्मीद करने का कारण देती है कि हर समस्या का हल है। आप सभी को मेरी तरफ से राष्ट्रीय गणित दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सोनी मौर्य, कक्षा 11वीं विज्ञान की छात्र, आप लोगों के सामने आज के महत्वपूर्ण दिवस पर अपने कुछ विचार लेके प्रकट हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारत के महान गणित विज्ञान श्रीनिवासन रामानुजम की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 26 फरवरी को 2012 को रामानुजम की 125वीं जयंती के अवसर पर मद्रास के विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में इस दिन को घोषणा करने की घोषणा की थी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीनिवासन रामानुजम भारत के महान गणित विज्ञान हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ। एक असाधारण मास्टर और एक असाधारण गणित विज्ञान रामानुजम ने अपनी सच्ची आजीविका को संख्या में पाया और संख्याओं से स्थित संकेत और नियमित विभिन्न आशाओं को असाधारण योगदान दिया। वे विश्व में अन्य विषयों में बेहतर नहीं थे, लेकिन गणित में उनकी एक अलग सी ही रुचि थी और वे अपने एक उज्जवल छात्र थे। भारतीय प्रतिभाशाली गणित विज्ञान रामानुजम ने का जन्म 22 दिसंबर 1887 मद्रास में हुआ था और वह 26 अप्रैल 1920 को उनका निधन हो गया था। श्रीनिवासन रामानुजम एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे और गणित में श्रीनिवासन रामानुजम ने अपना बेहतरीन योगदान दिया। और मैं आपसे अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि गणित के बिना कुछ भी नहीं। आप अपने आसपास सब कुछ कर सकते हैं। गणित आपके आसपास सब कुछ संख्या है। धन्यवाद। आपका अच्छी तरह से आपने हमारे भारतीय गणितज्ञ, महान गणितज्ञ रामानुजन जी के बारे में बताया और ये हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं और रहेंगे। इनकी कंट्रीब्यूशन हमेशा हमें याद रहेंगी। निष्का प्रेजेंट है? हाँ, ठीक है बेटा। ओके, स्टार्ट बेटा। Present here today, I, Kanishka of class 11, has been asked to deliver a speech on our famous mathematician Srinivasa Ramanujan. Srinivasa Ramanujan was born on 22 December 1887. He was an Indian mathematician who lived during British rule in India. Though he has almost no formal training in pure mathematics, he made subsequent contribution to mathematical analysis, number theory, infinite series, and continued fraction, including solutions to mathematical problems then considered unsolvable. Ramanujan initially developed his own mathematical research in isolation. During his short life, he independently compiled nearly 3900 results. Many were completely novel. He proposed any abundance of formulae that could be investigated later in depth. He was only 32 years old, but his teachings are still alive in many people's mind and text. He once said, "An equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God." Thank you everyone and have a beautiful day ahead. महान हमारे भारतीय गणितज्ञ कैसे इन्होंने बहुत छोटी सी एज में 32 इयर्स एज में इन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। 3900 रिजल्ट्स देना बहुत बड़ी बात है। मैं तनिषा को बुलाना चाहूंगा।
कि वो भी अपने इस महान Gaitanish of class 11th on this auspicious day of Srinivasa Ramanujan's birth anniversary would like to present few lines on him. So, Srinivasa Ramanujan was one of the world's greatest mathematicians, and he is known for his great work done in his field. He made many of his theories very popular in the world, and this is why his principles are still used in many countries. He was born on December 22, 1887 in Erode, and he is known by many contributions made in theory of numbers. In the beginning, Ramanujan never studied mathematics. Later on, he studied mathematics and became its expert in later part of his education. He studied some books written by international mathematicians, and after a few years, he made many of his theories on mathematics. He was very poor, and he did various research on only under bad circumstances. But later, he was supported by Ramchandra Rao and his clerical job, due to which he was able to learn more and invent new studies on mathematics. In 1914, he won scholarship to England and studied hard under Godfrey. Not only did he work hard, but also invented various other theories made Hardy his fan. He surprised every teacher with the knowledge of mathematics because he knew the modern techniques of mathematics. But at that time, he still performed better than many professors and researchers. He invented many theories, and most of the famous ones are followed continuously. Mock-leaf work, Ramanujan estimations, Ramanujan Pradhan, Ramanujan leaf ceremony, Ramanujan zodiac, Ramanujan set series, etc. He also won the companionship of the Royal Society. He worked for a very short period because he was only 32 years old, but his teachings are still alive in many people's mind and textbooks. So this was about Srinivasa Ramanujan, the country's best mathematician. Thank you and have a marvelous day ahead. और उनके द्वारा आपको देखो, ये उनका जो इंटरेस्ट था बेटा, वो ज्यादातर मैथ्स में था और वो बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो जाया करते थे। और वो क्वेश्चंस पहले करते थे जो उनको चैलेंजेबल लगते थे, जो वो किया करते थे। तो बहुत कम एज में उन्होंने, बहुत कम एज रही उनकी, लेकिन उनके योगदान को हम भुला नहीं सकते हैं। अब मैं अंत में मैडम, हमारे इंचार्ज प्रिंसिपल मैडम वर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इसके बारे में, वो भी रामानुजन जी के बारे में कुछ चंद शब्द कहें। वर्मा मैडम। गुलेरियन सर और जो आप सभी का जीवन के बारे में, जैसे आप सभी ने बहुत कुछ कहा, और मुझे इतना कहने की अब आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी बच्चों ने इतनी सुंदर प्रस्तुति दी है। तो मैं इतना ही कहूँगी कि इतना महान गणितज्ञ जो हमारे देश की शान थे, हमें उन पर गर्व होना चाहिए, और उनके जन्मदिन को हमें प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरे सम्मान के साथ मनाना चाहिए। हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश में, जो हमारे पश्चिम देश, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1887 में, 1887 में इनका जन्म हुआ था। और बहुत कम आयु में 32 वर्ष, जैसे आप लोगों ने भी कहा कि 32 वर्ष की आयु में ही ये देहांत हो गया था। जिस व्यक्ति को 32 वर्ष ही मिले हैं और उसने उन 32 वर्षों में ही 100 वर्षों का काम कर दिया। अगर ये व्यक्ति 100 वर्ष तक जिंदा रहते तो आप कल्पना कीजिए कि वो भारत को कहां से कहां तक ले जाते। ऐसे महान विभूति, महान विद्वान हमारे देश में पैदा हुए, और ऐसे लोगों का हमें मान सम्मान करना चाहिए। और हम सभी को, जो गणित जिस विषय को आप एक कठिन विषय के रूप में मानते हैं, उस विषय को उतना ही सम्मान देना चाहिए जितना इन्होंने दिया था। ठीक है, तो कोई भी विषय इतना कठिन नहीं होता जिसको कि हम, कई बच्चे तो ऐसे डर जाते हैं कि नहीं जी पढ़ाते थे। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे होते तो उन बच्चों को भी पढ़ाते थे। जैसे गुलेरिया सर ने बताया कि अपने टीचर को भी ये गाइड करते थे। कुछ ऐसे
बातें जहाँ पर जो चीजें टीचर को भी क्लियर नहीं होती थी, ये रामानुजन उनको समझाते थे एक स्टूडेंट होने के नाते। ये जो आदर्श हैं, इनकी जो शिक्षाएं हैं, इनके जो बताए हुए मूल सिद्धांत हैं, हमें उन पर चलना है और अपने जीवन को आगे संवारना है, आगे बढ़ाना है और अपने